Hello everyone. Every year, students keep on asking me, Sir, make a video on how many questions actually came from current affairs program of Level Up IAS. And every year, because of workload, in the past, I haven't been able to do it. But this year, I decided I have to spend one entire day to go through the question paper, the notes, and compile everything which came from our current affairs program. And yesterday I did that, and I realized that there are 40 plus questions which came from our program, and of them, like some of them are partially solvable and some of them are fully solvable. You be the judge. Watch the entire video and see if whatever I'm saying is true or not. Second, we will also be uploading the snippets of the classroom where I have discussed these topics, ensuring that all of you get to know only from what I have taught in current affairs program and in the free YouTube series. जैसे current affairs program का मैंने थोड़ा सा पार्ट मैपिंग वाला सेक्शन मैंने फ्री YouTube सीरीज में किया था, ऐसे मैंने इकोनॉमी के कुछ फ्री YouTube वीडियोस डाले थे. तो current affairs program plus free YouTube series would have given you 40 plus questions. Let me take you through these questions. जैसे if I start with, so I'm looking at set D of the question paper. So let me start with question number 9 here. देखो, question number 9 was about countries which are resource rich in. Now, I did not speak about Botswana, but I had covered Chile में lithium मिलता है, Indonesia में nickel मिलता है. In fact, this was the snippet from the class notes. Economy का booklet 13. Now you may think कि booklet 13 इतने सारे booklet नहीं, 8-10 पेजेस के थे. तो बुकलेट 13 डजंट मीन कि वो 500 पेज वाले नोट्स होंगे, नहीं. इकोनॉमी करंट अफेयर्स में हार्डली 130-140 पेजेस थे, दैट्स इट. उसमें पेज नंबर 4 पे वी हैव डिस्कस्ड वेरियस मिनरल्स and the countries which are rich in it. You will see I had emphasized here cobalt DRC में mostly मिलता है. It was asked in the preliminary examination. Then lithium Australia में, Chile में, Australia में, Chile में. This I had taken from Economic Survey of India. 3-4 साल पहले Economic Survey of India में आया था, and since then we have kept it in our notes. ऐसे ही you will see nickel Indonesia में. तो what I'm saying is this question is not fully solvable from my notes. This is partially solvable. Only Chile and Indonesia thing we have covered. बोत्सवाना वाला कवर नहीं किया, इसीलिए मैं इसे पार्शियली सॉल्वेबल में डाल रहा हूं. बट when you come to other sections, most of the questions जो 40 plus questions मैं claim कर रहा हूं कि have come from Level Up IAS current affairs notes, most of them are fully solvable. Just watch this video, you'll get an idea. ये क्वेश्चन था INSTC वाला. देखो, इन मैपिंग मैंने INSTC पे बस इतना पढ़ाया है कि INSTC a multimodal network of ship rail routes for transport of freight between India, Iran, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Russia, Central Asia and Europe. तो इंडिया से यूरोप जा रहा है, ईरान, अजरबैजान होते हुए जा रहा है. This is the only thing that I had taught, and exactly वो ही एग्जाम में पूछा गया है. This question was completely solvable. This was question number 12 in set D of the question paper. ऐसे if I take you to and this was where this was in mapping का booklet 1 page number 45, and mapping तो मैंने पूरा YouTube पे कराया है. तीनों videos of mapping are on YouTube. You can go and verify it. I did this in somewhere in March. Then we have this question. वेट बल्ब टेम्परेचर वाला क्वेश्चन कि सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एंड पेनिनसुलर इंडिया में फ्लडिंग आएगी. देखो, यहाँ पे वी हैव कवर्ड इन एनवायरमेंट बुकलेट 18. तो देयर वाज ओनली वन बुकलेट ऑन क्लाइमेट चेंज दैट वी हैड कवर्ड. उसी बुकलेट से 4-5 क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो आर्टिकल 6 वाला हो, चाहे वो COP 28 वाला हो, चाहे वो ये वाला क्वेश्चन हो. तो वेट बल्ब टेम्परेचर एक पूरा टॉपिक हमने कराया है एक्सप्लेनिंग कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज से इंपैक्ट होगा, कैसे विद क्लाइमेट चेंज वेट बल्ब टेम्परेचर वुड इंक्रीज. ऑल्सो वी हैव टॉक्ड दैट the theoretical maximum wet bulb temperature is 35 degrees Celsius, and most humans, even with unlimited water supply, are likely to suffer heat stroke at the level likely leading to death. यही वाला पार्ट सेकेंड वाले सेक्शन में. फर्स्ट वाला इज अबाउट क्लाइमेट चेंज, सेकेंड वाला इज अबाउट दैट. एंड if from classroom, if you had watched classroom videos, if you had gone through classes, if you had gone through notes, you would have easily been able to do that. Let me take you to question number 4, और पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 था, which was about finance commission. तो ये देखो, पॉलिटी में we had covered
पॉलिटी करंट अफेयर्स ओनली इन 6-7 बुकलेट्स, छोटे छोटे बुकलेट्स थे. पॉलिटी बुकलेट 6 में वी स्पोक अबाउट फाइनेंस कमीशन 16 एंड देयर वी आल्सो डिस्कस्ड फाइनेंस कमीशन 50's रिकमेंडेशन एंड वी हैव सेड कि फाइनेंस कमीशन 15 ने 42% स्टेट के शेयर को 41% कर दिया बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर हैड बिकम अ यूनियन टेरिटरी, तो दैट विल गो फ्रॉम सेंटर शेयर, दैट मनी विल गो फ्रॉम सेंटर शेयर. एंड जस्ट नोइंग दिस कि यार 41% of the union government's proceeds of union taxes are shared with state was enough for solving this question. ये statement 2 यहाँ पे 45% wrong हो जाएगा and you'll only be left with answer C. This was also completely solvable just through current affairs classes at Level Up IAS. And now मैं इसमें पूरे साल की बात कर भी नहीं रहा हूँ, just the current affairs that I taught after January. जब मैं prelims focused हो गया था तब की क्लासेस से आप देखेंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व 40+ क्वेश्चंस, मोस्टली फुली. कुछ 8-10 क्वेश्चन है आई शोन यू इन द इंडेक्स जो पार्शियली सॉल्वेबल है. देन लेट मी टेक यू टू आईबीआरडी. आईबीआरडी वाला क्वेश्चन भी कंप्लीटली सॉल्वेबल है. कैसे देखो, आईबीआरडी मैंने यहां पे पढ़ाया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पार्ट में कि आईबीआरडी भी लोन दे रहा है, सोवरेन गारंटी ऑन द बेसिस ऑफ सोवरेन गारंटी. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन भी लोन दे रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ सोवरेन गारंटी. आप देखोगे नीचे और भी बताया हुआ है कि आईबीआरडी एंड आईडीए फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज इन एरिया सच एज ह्यूमन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड दे गिव लोन एट प्रेफरेंशियल रेट टू मेंबर कंट्रीज. नाउ इफ यू कम टू this was World Bank वाले notes. If you come here, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट वर्क सिंगल हैंडेडली. यार यहीं पे आईबीआरडी भी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन भी है, तो आईबीआरडी इज नॉट वर्किंग सिंगल हैंडेडली. मोरओवर बहुत सारे और डेवलपमेंटल बैंक्स हैं. तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. द मोमेंट यू मेक स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, यू आर लेफ्ट विद योर आंसर. दो हमने 1 भी किया हुआ है. 1 is also there कि it provides loans and guarantees to middle income countries. That is also there in notes. But मैं बोल रहा हूं कि just statement 2 से ही आप ये पूरा सवाल कर पाओगे और ये आपके notes में दिया हुआ है. This was 5th question which could be done from our current affairs classes. This was question number 17 in set D of the paper. Then RTGS and NEFT. आप इकोनॉमी के बुकलेट 7 पे जाओगे, वहां पे if I bring you here, you will see real time gross settlement system, नेफ्ट, दोनों को हमने अच्छे से समझाया है, अच्छे से किया है. एंड दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड हियर. This question was also completely solvable from what? From our current affairs classes, from something that we did between January and April. मैं मई में जो कुछ अपडेट दिए होंगे उसकी बात भी नहीं कर रहा. जनवरी से अप्रैल में जो पढ़ाया है आपको करंट अफेयर्स में, that is good enough. And some videos we had also put on YouTube, including mapping वाले वीडियो, कुछ इकोनॉमी बेसिक्स के वीडियो, and with that you'll be able to solve all these questions. Then let me bring you to question number 20, which is 7th question which came from our notes. अब देखो यहां पे ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 20, एक मिनट देखते हैं. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. अच्छा, मुझे इसे ना पार्शियली सॉल्वेबल लिखना चाहिए था बिकॉज द थर्ड स्टेटमेंट, ये 3 लाख स्किल्ड वर्कर्स वाला कंपोनेंट है, ये नहीं किया है हमने. देखो दिस वाज इकोनॉमी करंट अफेयर्स का बुकलेट है जहां पे हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह के अपडेट्स कर रहे थे. ऑन पेज 7 आई हैव डिस्कस्ड अबाउट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पे 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को दिया जाएगा, 1 करोड़ homes में throughout the country. This would be done. Now what some institutions have done, they are saying कि यार 1 करोड़ households से 1 करोड़ solar rooftop panels नहीं है, तो 1 is wrong. 1 wrong हो जाएगा तो you will be left with answer C. But पता है 2 and 3 सही है, sorry, हाँ 2 and 3 सही है. तो वैसे तो by this you should be able to do it, but I don't want to get in that technical difference. If I go by this logic कि 1 करोड़ सोलर पावर पैनल्स नहीं है, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स है, तब तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्वेबल है फ्रॉम आवर नोट्स ओनली. बट 1 and 2, अच्छा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वी वर डूइंग इट अंडर द टॉपिक ऑफ स्कीम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. तो सेकंड पार्ट की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये करेगा, ये भी डूएबल है. बट मैं इसे फिर भी पार्शियली सॉल्वेबल बोलता हूं कि यार फर्स्ट सेकंड हमने किया हुआ है. थर्ड, ये नंबर 3 लाख स्किल्ड मैन पावर, मैंने बाद में स्कीम के डॉक्यूमेंट्स में जाके देखा, दिस नंबर इज एक्चुअली ट्रू. तो उससे तो ये वाला नंबर मैंने क्लास में नहीं इंक्लूड किया है, एंड दैट इज व्हाई आई विल से कि दिस क्वेश्चन वाज पार्शियली सॉल्वेबल फ्रॉम व्हाट वी डिड इन क्लास. देन कम टू दिस रेयर अर्थ एलिमेंट वाला क्वेश्चन. ये ना
ऐसा लग रहा है कि हमारे नोट्स में से उठाया गया है, जो जो पढ़ाया है, जैसे जैसे पढ़ाया है वैसे आया। देखो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहे हैं, फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन कंप्यूटर मॉनिटर में यूज होता है। देखो हमने यहाँ पे बताया है टेलीविजन स्क्रीन में यूरोपियम यूज होता है। इनफैक्ट for those of you who have watched classes, I specifically emphasized on europium because europium was one of the first rare earth elements जिसका डिमांड बहुत बड़ा था as color TV का डिमांड बढ़ा। then some rare earth elements have phosphorescent properties। ये देखिए rare earth elements also used as catalyst phosphors। तो ना मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बस वो टर्म रेफर किया हुआ है, नहीं, अगर एग्जैक्टली वो हमने नहीं पढ़ा है, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट सेंटेंस दैट क्वेश्चन। दोनों चीजें कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन फ्लैट स्क्रीन टीवी, रेयर अर्थ एलिमेंट हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज, दोनों चीजें कराई हुई हैं क्लास में। और अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, इकोनॉमी करंट अफेयर्स हमने बहुत कम पेजेस में किया है। देखो व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड एनवायरमेंट, साइंस और एनवायरमेंट में मैं बेसिक्स भी कवर करता हूं करंट अफेयर्स में, इसीलिए वो ज्यादा होते हैं। देखो सपोज एनवायरमेंट में आप जो बच्चा करंट अफेयर्स हमसे नहीं पढ़ रहा है, वो कोई एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ेगा, वो शंकर आईएएस वाली बुक पढ़ेगा, पीएमएफ की बुक पढ़ेगा और फिर करंट अफेयर्स मैगजीन करेगा। उस वो मिला के जितने नंबर ऑफ पेजेस करते हैं उससे कम हम करते हैं साइंस एनवायरमेंट में। बट इकोनॉमी में तो और भी बहुत कम किया है और फिर भी बहुत सारा ओवरलैप है। यू सी दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव कवर्ड इन क्लासेस। लेट मी टेक यू टू क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच इज आल्सो कंप्लीटली सॉल्वेबल। देखो ये आपके इकोनॉमी के करंट अफेयर्स बुकलेट 9 में पेज नंबर 9 पे है, जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट स्टेटमेंट, नेशनल रेलवे प्लान हैज इंडियन रेलवे हैज प्रिपेयर्ड एनआरपी टू क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। नहीं भाई, फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। वन इज रॉन्ग, वन रॉन्ग होते ही आपको आंसर मिल गया। बट ऐसे 2 और 3 जानने की जरूरत नहीं, बट मैंने 2 और 3 भी पढ़ाया है। देखो कवच को मैंने नीचे डिटेल में, कवच इज ऑन पेज नंबर 21 ऑफ द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर बुकलेट। विच बुकलेट? इकोनॉमी करंट अफेयर्स बुकलेट 9 में कवच भी पढ़ा है, बट उसकी भी जरूरत नहीं थी। जस्ट दिस थिंग किया, नेशनल रेलवे प्लान विजन 2030 का टारगेट 2030 तक इंडिया को, इंडियन रेलवेज को फ्यूचर रेडी रखना है, वाज गुड इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट मी टेक यू टू अनदर क्वेश्चन। देखो इसे मैं पार्शियली सॉल्वेबल बोल रहा हूं, सिर्फ मैंने 2 स्टेटमेंट्स कवर किए थे। गगनयान और स्पेसएक्स मैंने पढ़ाया था। एग्जाम 4, यार एग्जाम 4 ना जून में जाने वाला है, जून 2025 में इट्स सपोज टू बी लॉन्च्ड, तो इसलिए उसके बारे में हमने कवर नहीं किया। बट ये 2 स्टेटमेंट्स की स्पेसएक्स क्या है, गगनयान क्या है, दोनों किया है। एंड देखिए दिस इज साइंस एंड टेक बुकलेट 1 पेज 11, साइंस एंड टेक बुकलेट 2 पेज 9। और अब देखोगे यहाँ पे ना मेंशन्ड भी है कि ये माइक्रो, देखो जैसे गगनयान में माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट में यूज होगा, ऐसे स्पेसएक्स में माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट होगा। दोनों चीजें आपके नोट्स में है। तो अगेन इसे मैं पार्शियली सॉल्वेबल ही मान रहा हूं क्योंकि एग्जाम 4 नहीं करा, तो आई वुड नॉट से कि दिस, यहां पे मैंने नहीं लिखा है कि कंप्लीटली सॉल्वेबल, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर कवर्ड। देन ये कंप्लीटली सॉल्वेबल वाला है, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल। अपन ने क्लाउड सीडिंग पढ़ा है। देखो क्लाउड सीडिंग कैसे करते हैं। क्लाउड्स इन क्लाउड सीडिंग, क्लाउड्स आर इंजेक्टेड विद सॉल्ट्स लाइक सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड विच एक्ट एज सीड। तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पूरा एकदम डिट्टो वही है, राइट। मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा, आप ईमानदारी से, आप ऑनेस्टी से करंट अफेयर्स प्रोग्राम को फॉलो करो, आप देखोगे योर प्रिपरेशन वुड बी सिंप्लीफाइड लाइक एनीथिंग। Okay, let me take you to this was 11th question, 11 question so far, which was what, which is something that has come from our current affairs program. इस 11 में से सिर्फ 2 partially solvable है, बाकी सारे 9 fully solvable है। This was question number 25 in set D of the question. Then let's come to question number 27. अब ये था on the dissolution of house of people, speaker shall not vacate। ये देखो यहां पे क्या हुआ है, स्पेशली नोट डाल के बोला हुआ है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड स्पीकर शैल रिजाइन। हमने बोला कि नहीं यार, दे कैन रिजाइन एंड दे विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, उनके लिए एक्सेप्शन है, बट दे शुड रिजाइन, ऐसा कुछ नहीं है। देन द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस by a resolution of House of the People passed by majority of all the then members of the House, provided that 14 days का नोटिस मिले। देखो ये भी यहाँ पे करा हुआ है, may be removed from his office by resolution of the House of the People passed by a majority of all the then members of the House, and a resolution under 94C can only be moved after providing at least
14 डेज नोटिस। तो देखो पॉलिटी करंट अफेयर्स में ना बहुत हमने 5-6 बुकलेट्स करी है, बट जितना भी करंट अफेयर्स आया है पॉलिटी का वो अपने करंट अफेयर्स नोट से ही आया है। यू डू नॉट हैव टू गो हेयर एंड देयर, जस्ट दीज नोट्स वर इनफ फॉर योर पॉलिटी क्लासेस। और देखो मैं बस ना पार्शियली रेफर करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे जहां पे टीचर ने ना बस वो रेफर कर रखा है कहीं पे, देखो मैंने स्पीकर रेफर कर रखा है एंड दे आर क्लेमिंग इट, आई एम नॉट। इफ the statement is not directly doable from your question, from your notes, I'm not saying that it came from our notes. Okay, let's come to question number 13. ये भी completely solvable है। क्या है? इट इज अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। तो डिस्क्वालिफिकेशन में प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा नहीं, हमें पता है। डिस्क्वालिफिकेशन में किसका डिसीजन फाइनल होता है? स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस, उनका डिसीजन फाइनल है। ये आपके पॉलिटी करंट अफेयर्स में बुकलेट 5 में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट disqualification, there is no mention of the word political party. This is also wrong. In the schedule 10 we have political party mentioned, and the anti defection law और schedule 10 हमारे पास political party mentioned है। तो both the statements are from current affairs notes, again doable. Now you may be wondering, you may be asking, sir ये तुम ना लक्ष्मीकांत पढ़ के भी हो जाएगा? हाँ हो जाएगा यार, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं आप लोग पॉलिटी में करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो क्या हम जो चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं करंट से उसको अपने पॉलिटी करंट अफेयर्स के नोट से, पॉलिटी करंट अफेयर्स में कितने 60-70 पेजेस के नोट कराए, 60-70 पेजेस के नोट्स है, क्या हम उससे पॉलिटी करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस को और अच्छे से कर सकते हैं? नहीं, हम कर सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 33। विथ रेफरेंस टू इंडियन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल। यार इसमें एक ही इसे भी ना एक्चुअली मुझे पार्शियली सॉल्वेबल लिखना चाहिए था। एक ही इंटरस्टेट काउंसिल इज समथिंग दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, वी हैव कवर्ड इट इन क्लास, इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ा हुआ है। बाकी दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं तो हमने उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में नहीं कवर किया, बट दिस वी हैड स्पोकन अबाउट इंटरस्टेट काउंसिल also in our class. We had mentioned it was established in 1990 after the recommendation of Sarkaria Commission, and it is a constitutional body. Then let's come to question number 34. Question number 34 कौन सा है? हाँ, again पॉलिटी का ही है। Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the governor of a state act in his or her own discretion. हमने while talk we have specifically governor वाले section में on in polity current affairs booklet 5 page 1 we have spoken about discretionary power of the governor, and there we have mentioned under article 163 clause 2 the decision of the governor in his discretion shall be, the governor has been given power. This article clearly states that governor of a state has discretionary power under constitution in respect of which he is not required to consult his minister. This clearly stated है। और आप ये question, if you have read these notes, you will easily be able to do it from here. The president of India can on his or her or can of his or her own reserve a bill passed by a state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor. हमने ये टॉपिक भी गवर्नर होल्डिंग असेंट टू स्टेट बिल और उसमें क्या क्या ऑप्शंस है, गवर्नर आर्टिकल 201 व्हेन गवर्नर when a bill is reserved by governor for the consideration of president, वो पूरा पढ़ा है। and we have seen कि there is no such provision कि president himself may take something, it has to go through governor only. तो that is why both these questions are, both these statements are given in our notes. Both these statements are can be answered by our current affairs classes. This question is also fully solvable. Now let me take you to question number 36 of set D, which is also completely solvable. फिफ्थ शेड्यूल वाला क्वेश्चन है। देखो बुकलेट 6 में पेज नंबर 13 पे वी हैव डिस्कस फिफ्थ शेड्यूल। क्या है? स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर। नहीं, देखो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर हमने मेंशन किया है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट एक्सटेंड टू शेड्यूल एरिया, राइट? ऐसे ही द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। गवर्नर हैज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एनुअली or whenever the president requires. Here executive power of center extends to giving direction to states regarding the administration of such area. Central government cannot take over the entire administration. This question is also answerable from polity current affairs booklet 6 page 13. हमने अप्रैल एंड के टुवर्ड्स ये polity current affairs किए थे। Now let me bring you to question number 42, BIMSTEC। देखो
सारी चीजें इसमें जो जो तीनों स्टेटमेंट्स है, तीनों स्टेटमेंट्स अपने नोट्स में है। इंटरनेशनल बॉडीज करंट अफेयर्स बुकलेट 4 पेज नंबर 18 पे वी हैव इट। इट्स अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स, 7 मेंबर स्टेट्स, ये मेंशन्ड है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद बैंकॉक डिक्लेरेशन। दिस इज रॉन्ग। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल वर द फाउंडिंग मेंबर। नो, बिस्टेक था ना ओरिजिनली। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड वर दी फाउंडिंग मेंबर्स एंड इन बिम्स्टेक सबसेक्टर ऑफ द टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। आपको ये भी पढ़ाया है, आप आइए यहां पे देखिए। ऑफ द 7 एरियाज सिक्योरिटी एनर्जी इज लेड बाय इंडिया, नॉट tourism. Each and every statement that is there in the question आपके क्लास नोट से होता। I'm not saying this question came from my notes just because I have mentioned BIMSTEC somewhere. Each and every statement is doable. Okay, let me take you to the next question. This is 18th question जो हमारे नोट्स में से आ रहा है। गगन। अब देखो गगन, हाँ गगन के बारे में उसे स्पेशली डिस्कस करना था। गगन is an old initiative, 2015-16 का initiative है, and that's why I had removed it from the notes. It was not there in the notes, but I wanted you to know it, and that is why while doing RTFQ, what I did, I made you solve 2 questions on Gagan, and in these videos, RTFQ videos YouTube पे थे, सबके लिए अवेलेबल थे, वहां पे मैंने आपको गगन कराया और मैंने emphasize भी किया कि why I am covering it. I said it is for me, it is less important, but फिर भी कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, and अगर क्वेश्चन आ गया तो वी विल बी कंफर्टेबल। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट स्टोरी कि व्हेन फिशरमैन मूव अवे एंड सेल टावर से उनका फोन कनेक्ट नहीं होता, को गगन यूज करके जेमिनी डिवाइस बना है विच कैन हेल्प फिशरमैन। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर इन सेक्टर्स अदर देन एरोनॉटिकल सेक्टर ऑल्सो, ये भी आपने पढ़ा है, right? That is why I'm saying, I'm claiming this question. I'm saying that this came from what we taught in our current affairs program. Let me take you to the next question. Question number 47. BRICS, again, ditto, एक line. I would not claim this question unless each and everything is there. 16 BRICS summit was held under chairship of Russia and Kazan. देखिए, BRICS summit, 16 BRICS summit held at Kazan, chair Russia. Indonesia has become a full-time member. Indonesia joined in 2025. The theme of 16 BRICS summit is strengthening multiculturalism. नहीं, क्या है? Strengthening multilateralism. International bodies current affairs booklet 2 page 8, International bodies current affairs booklet 2 page 9. देखो, एक एक वर्ड मैंने बस ब्रिक्स पढ़ा दिया है. That is not good enough. If what has been asked in the question, अगर वो आपके नोट्स में नहीं है एग्जैक्टली वैसे, तो बस वो बेवकूफ बनाना है कि ये मैंने पढ़ाया है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है. ये एग्जैक्टली जो पूछा गया है. इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, आई वुड नॉट राइट कंप्लीटली सॉल्वेबल है. ओके, लेट मी टेक यू टू सम अदर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 56, ये भी मैं कंप्लीटली सॉल्वेबल बोल रहा हूं. क्या है ये? इंडिया हैज जॉइंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. आप आइए, मैंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स की बात करी है. क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया, उसमें मिनिस्ट्री इज आल्सो एक्टिवली इन्वॉल्वड इन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. बस ये देखो, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में एक लाइन बताया, पर यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कोई बल्कि नोट्स नहीं, कोई अननेसेसरी डिस्कशन नहीं, जस्ट वन लाइन अबाउट इट एंड यू आर एबल टू सॉल्व इट. इंडिया इज रिसोर्स रिच इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स. देखो यहां पे वी हैव टॉक्ड अबाउट कि let me bring you here. हाँ, यहाँ पे we have talked about कि of the 30 critical minerals 24 are included in the list. तो 30 critical minerals की बात है. अब देखो 24 are included in part D of the schedule. वो हमने mention किया because they are found in India. But ये बोलना ना कि all the 30 critical minerals India resource rich है, ये ऐसे ही गलत हो जाता है. मतलब common sense भी लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा. Now come to Parliament in 2023 amended and gave government exclusive auction right. देखिए आइए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली आपने मैंने क्लास में पढ़ाया है एंड क्लास में एम्फेसाइज किया है. देखिए, the inclusion of 24 critical minerals in part D of the first schedule of Mines and Mineral Development and Regulation Act means that the central government now has exclusive authority to auction mining leases and composite licenses for these specific mineral. यही पूछा है एग्जैक्टली.
अमेंडमेंट से ये राइट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को चले गए हैं। एग्जैक्टली दिस इज द स्टेटमेंट विच इज देयर। अगेन देखो, आई एम नॉट डूइंग दिस कि बस मैंने इसको क्रिटिकल मिनरल्स को पढ़ाया है तो आई एम सेइंग कि दिस क्वेश्चन इज डूएबल हियर। नहीं, आई एम सेइंग दिस क्वेश्चन इज डूएबल ओनली एंड ओनली व्हेन कंप्लीटली वो स्टेटमेंट आप कर पाओगे। ओके, लेट मी make you come to this question number 59। मैं इसे partially solvable बोल रहा हूं। सर्कुलर इकोनॉमी यार, in over the last 4 months of current affairs I have referred to circular economy on many occasions। मैंने समझाया है, पढ़ाया है। यहाँ पे आपके नोट्स में भी जैसे हम मिशन लाइफ की बात कर रहे थे तब सर्कुलर इकोनॉमी की बात करी है। तो सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, कॉमन सेंस है। ये दोनों स्टेटमेंट भी कॉमन सेंसिकल है। फिर भी मैं फुली सॉल्वेबल नहीं पार्शली सॉल्वेबल बोल रहा हूं कि जब तक ये टॉपिक स्पेसिफिकली, ये स्टेटमेंट स्पेसिफिकली नोट्स में नहीं है, I'm not saying that it's fully solvable, but मैंने over the last 4 months regularly mention किया है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, पता है, अब जैसे वायरस वाला क्वेश्चन था, हमने इतने वायरस के बारे में पढ़ा है, तो नो वायरस कैन बी फाउंड इन ओशन, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये सब हमने पढ़ा है। बट क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे नोट्स में नहीं है, आई एम नॉट क्लेमिंग दोस क्वेश्चंस। ड्रोन्स अपन ने पढ़ा है, बट नो ड्रोन कैन डू दिस, नो ड्रोन कैन डू दैट, इस तरह का क्वेश्चन आया विच वाज आल्सो इजीली सॉल्वेबल, बट आई एम नॉट क्लेमिंग इट। मैं वो ही क्वेश्चंस डालूंगा इस लिस्ट में जो आपके नोट से डिट्टो आ रहे हैं, जो एलिमिनेशन टेक्निक से हो जाएगा, जो बाकी मैकेनिज्म से हो जाएगा। आई एम नॉट कंसिडरिंग देम। ओके, लेट मी ब्रिंग यू टू नाटो। देखो, शायद पूरे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन सेक्टर में I'm the only teacher who has made my students remember NATO countries on their tips. If you have been my student, or if you know any of my students in current affairs program or even in PMP program में भी मैंने ये सेम चीज पढ़ाई थी जो मैंने current affairs program में पढ़ाई है। All my students have studied NATO में member, यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज, नाटो की मेंबर कंट्रीज मैंने पढ़ाई थी। आई हैड स्पेसिफिकली एम्फसाइज्ड कि सर्बिया नहीं है यहाँ पे, ऑस्ट्रिया नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, दीज थिंग्स, स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रहता है, ये सारी चीजें हमने कराई थी। उससे ये क्वेश्चन पूरा डूएबल है। एग्जैक्टली फ्रॉम नोट्स है, बस नाटो पढ़ा दिया इज नॉट इनफ। डिड आई make students remember NATO countries? Did I emphasize on कौन सी EU countries इसका पार्ट नहीं है? जैसे EU countries not part of NATO में ऑस्ट्रिया मेंशन किया है, नॉन EU countries which are part of NATO वो भी मेंशन किया है। तो this question is fully solvable with what we have done in class। Let me bring you to question number 62। देखो, अभी तक 23 क्वेश्चंस हो गए हैं, जो उसमें से 3 या 4 पार्शियली सॉल्वेबल है, रेस्ट are fully solvable from what we have done in classes। Let me bring you here। Andes mountain, ये देखो, it goes through 7 countries, और you know, ये मैपिंग में मैंने पढ़ाया है, YouTube पे पढ़ाया है, सबको पढ़ा है। And for those of you who are part of current affairs program, no, जो करंट अफेयर्स प्री कम मेंस बैच के पार्ट है जो जून से अब तक है, उनको तो 3 बार पढ़ा दिया है। I've taught this somewhere in July, I've again taught this in December, I've again taught this in target prelims phase somewhere in March। YouTube पे मैपिंग सेक्शन में पूरा पढ़ाया है। We have also given questions on it in your Samiksha test, in your weekly tests। Okay, so this question is also fully solvable question। This was 23rd question, question number 62 in the part D of the paper, and 23rd question here। Let me bring you to question number 63। अब देखो, question number 63 मैं इसे partially solvable बोल रहा हूं, मैं इसे fully solvable नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सब कुछ solvable नहीं है। देखो, इनमें से किस लेक से इक्वेटर पास होता है? तो what we have done is कि इक्वेटर से कौन सी कंट्री पास होती है, we have done that, and we have also studied लेक तंगनेका। We have seen लेक तंगनेका कहां पे, इस तरफ है, एंड इक्वेटर ऊपर से पास होता है। यहां पे we have studied कि इक्वेटर ऊपर से पास हो रहा है, लेक तंगनेका नीचे की तरफ है। तो लेक तंगनेका से इक्वेटर पास नहीं हो रहा, दैट वी हैव डन। लेक टोनले सैप मैंने नहीं पढ़ाया, लेक लगून मैंने नहीं पढ़ाया, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टॉट। पार्शियली सॉल्वेबल है, फुली सॉल्वेबल नहीं है। लेट मी ब्रिंग यू टू question number 69, which is 25th question which I am claiming. This is also fully solvable। Without the atmosphere, temperature would be well below freezing point everywhere on the earth's surface। आप देखो, यहाँ पे हमने पढ़ाया है, अगर आप सारे गैसेस हटा दोगे, in the absence of greenhouse gases, the average temperature on earth would have been -18 degree Celsius। Presently it is 15 degree Celsius।
otherwise it would have been minus 18 degree Celsius. Now heat absorbed and trapped by atmosphere maintains our planet. यही वाली पार्ट है कि gases in the earth atmosphere trap heat are known as greenhouse gases. They let sunlight pass through, but they prevent the heat that the sunlight brings from leaving, and that is crucial for survival of life, that is maintaining the temperature. Atmosphere's gas like carbon dioxide are particularly good at absorbing. ये greenhouse gases की list है, अपन ने पढ़ी है, समझी है, सब कुछ किया है. All these three statements are doable. अब पता है इसमें issue क्या है? Issue ये है, this statement is extreme. Freezing point everywhere on Earth's surface. जहां पे सनलाइट पड़ रही होगी ना, डे टाइम में इट विल बी वेरी हॉट, सरफेस कैन बी वेरी हॉट, एट नाइट इट विल बी फ्रीजिंग. तो दिस शुड बी रॉन्ग. 2 and 3 should be correct, but in our answer key we have also published the source from which UPSC has taken these statements. अगर उस source पे जाएंगे तो all 3 of these are correct. But anyways, we will be able to solve this question fully from environment booklet 18 page 2. अच्छा, मैं ये numbers बताना भूल गया हूं. मैंने सब में, I will upload this PDF in the description, and सब में ये numbers डाले हुए हैं. कौन से नोट से कौन से पेज पे ये पढ़ाया हुआ है, I have kept it there. Let me bring you to question number 26. ये भी मैं partially solvable बोल रहा हूं. गोकुल मिशन, देखिए मैंने एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में बहुत सारे स्कीम्स कराए. उसमें एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन है जो इंडिजिनस ब्रीड्स की इंप्रूवमेंट के लिए है, ये पढ़ाया हुआ है. तो इससे दिस क्वेश्चन कैन बी पार्शली अंडरस्टूड कि देखो यार, इंडिजिनस ब्रीड, पहला स्टेटमेंट, इंडिजिनस एनिमल्स जो लो प्रोड्यूसिंग है वो जनरली स्मॉल एंड मार्जिनल एंड लैंडलेस लेबरर्स के पास है. अगेन मेक सेंस. द वेल ऑफ पीपल वुड बी एबल टू गेट द हाई प्रोड्यूसिंग ब्रीड. Then it was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in the scientific and holistic manner. That is Rashtriya Gokul Mission. तो ये क्वेश्चन भी students have told me कि they have been able to do it perfectly. But still I'm saying what, मेरे लिए partially solvable है अगर exactly ditto यही statement मैंने क्लास में नहीं कराए हैं तो. Okay, let me bring you to question number 27 जो completely solvable है. देखिए, how many of the above are considered alternative powertrain? मैंने फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताया है, मैंने हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन्स के बारे में बताया है, मैंने यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ऑलरेडी डिस्कस किया है. ऑल दिस इन इकोनॉमी सीए बुकलेट, करंट अफेयर्स बुकलेट 6 पेज नंबर 12. दीज थिंग्स हैव बीन डन. दिस इज completely solvable from our notes. Then let me bring you to question number 85. अब इसे ना पार्शियल कवरेज बोल रहे हैं. क्यों पार्शियल कवरेज बोल रहे हैं? वी हैव टॉट कोल गैसिफिकेशन. वी हैव सेड कि कोल गैसिफिकेशन से मिक्सचर ऑफ गैसेस इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन प्रोड्यूस होता है. अब देखो यार, मीथेन नेचुरल गैस यूरिया के प्रोडक्शन में यूज होता है, हमने ये पढ़ा है ना. ऐसे ही इथेनॉल, मीथेन से इथेनॉल बनाया जा सकता है. यस, दैट इज पॉसिबल, राइट. तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि 1 and 3 हम कर सकते थे. अब नाइट्रोग्लिसरीन इज एन एक्सप्लोसिव. नाइट्रोग्लिसरीन कैसे बनता है ये सब हमने क्लास में नहीं पढ़ा, एंड दैट इज व्हाई आप यू वुड हैव बीन कंफ्यूज्ड बिटवीन बी एंड सी, बट ए और डी तो हम एलिमिनेट कर पाए फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड, एंड दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट पार्शियली सॉल्वेबल. देन क्वेश्चन नंबर 87, मेजोरना. इसको तो इतने डिटेल में पढ़ाया है. It is expected that Mazorna chip will enable quantum computing. देखो, quantum computing updates में Mazorna chip के बारे में पढ़ा रहे हैं. Mazorna chip has been introduced by Amazon Web Services. यार, ये Microsoft का है, Azure में यूज होगा. Microsoft Azure में, Amazon Web Service में नहीं. Now you may be wondering कि सर Microsoft Azure, Amazon Web Service ये भी याद रखना है. नहीं, एक तो ना Microsoft का Azure है, ये मैंने पढ़ाया है क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाते टाइम. क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाते टाइम आई गिव यू एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें Amazon वेब सर्विसेज एंड माइक्रोसॉफ्ट Azure आर द लीडर. अब ये चिप माइक्रोसॉफ्ट Azure की है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, तो कहां मिलेगी? माइक्रोसॉफ्ट Azure में मिलेगी, Amazon वेब सर्विस में नहीं मिलेगी. एंड डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. ये मेरा कोई बच्चा गलत कर ही नहीं सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डीप न्यूरल नेटवर्क, ये ऑर्डर होता है, सब उसके सबसेट होते जाते हैं. और ये I have emphasized on class many a time. So this question is also fully solvable from what we have done in classes. Then this is question number 93. ये partially solvable है. अब देखो, consider the following statements. Scientific studies suggest that shift is taking place in Earth's rotation and axis.
वाटर के मूवमेंट की वजह से फ्रॉम पोलर आइस कैप वाटर इज कमिंग टुवर्ड्स ओशन, तो उसकी वजह से शिफ्ट हो रहा है. सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेशन बोम्बार्डेड अर्थ्स आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये वाला पार्ट भी अपन ने सोलर विंड के बारे में डिटेल में पढ़ा है. इट कैरीज चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक क्लाउड एंड बोम्बार्ड्स अर्थ विद लॉट ऑफ एनर्जी, ये भी पढ़ा है. एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड्स टू, बट अब देखो, this is not responsible for tilt in Earth's rotation axis. So 2 is correct, but it is not rotation for tilt. What is responsible? 3 is responsible, and that is why both statement 2 and 3 are correct, but only one of them is explaining. 2 is not explaining, 3 is explaining it. तो हमने मेल्टिंग ऑफ सोलर आइस, वाटर शिफ्टिंग, एक्सिस रोटेशन वाला पार्ट भी, एक्सिस चेंज वो भी पढ़ा है. एंड वी हैव आल्सो स्टडीड सोलर विंड, हाउ इट इज ब्रिंगिंग हाई एनर्जी थिंग, बट इट इज नॉट इंपैक्टिंग द रोटेशन वाला थिंग. But still I'm calling it partially solvable. Now question number 94, which is what? Which is 31st question जो हमारे नोट्स में से आया है. आप देखो, most of the questions that I have discussed are fully solvable from what we have done. Question number 94, let me talk about this question. देखो, आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट के बारे में है. मैंने ना पेरिस एग्रीमेंट बहुत ब्रीफली पढ़ा है, बहुत छोटा सा पढ़ा है, बट वन थिंग दैट आई एम्फेसाइज्ड ऑन लॉट इज Article 6, Article 6.2 cooperative approach, Article 6.4 centralized mechanism, Article 6.8 non-market approach. ये दोनों market approach है, ये non-market approach है, and exactly this is what has been asked. Article 6 of the Paris Agreement has been used because global in global discussion on sustainable development and climate change. Yes, उस climate change से related ही है Paris Agreement. Article 6 of the Paris Agreement on the climate change sets out principle of carbon market. 6.2 and 6.4 are setting out principle of carbon market. Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies. Non-market approach भी है. यार मैं ना चैलेंज कर सकता हूं, किसी और ने करंट अफेयर्स में इतना सिस्टमैटिकली आर्टिकल 6 को नहीं पढ़ाया होगा. सब ना सुपरफिशियली पढ़ा के निकल जाते हैं, क्योंकि एनालिसिस सही होता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड पीपल डोंट डू दैट एनालिसिस. वो ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाएंगे, बट आई हैव जो एग्जाम में पूछा है एग्जैक्टली वही पढ़ाया है. देन लेट मी ब्रिंग यू टू क्वेश्चन नंबर 96. 96 को मैं पार्शियली सॉल्वेबल बोल रहा हूं. डायरेक्ट एयर कैप्चर. देखो, अपन ने डायरेक्ट एयर कैप्चर पढ़ा है. Direct air capture, capturing carbon directly from air using advanced technologies. For now, technology is highly expensive and energy intensive. Then carbon capture and uske applications. So once we are able to capture carbon, it can be used for as raw material in other industrial process such as bicarbonate industry, etc. और वही पूछा है यहाँ. It can be used as a way of carbon sequestration. Yes, doable. It can be a valuable approach for plastic production and food processing. वो raw material की तरह use हो सकता है ना इन industries में, वो भी अपन ने पढ़ा है. In aviation, it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon. ये वाला statement अपन ने नहीं किया है. That is why I'm saying what? Partially solvable. Once you understand कि कार्बन CO2 मिल गया, अब CO2 को आप प्रोसेस करके मीथेन वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो this is what this third statement is about. Or we have indirectly in biofuels etc have talked about these mechanisms, various processes etc, but still मैं बस 1 और 2 को क्लेम करूंगा और इसे पार्शियली बोलूंगा कि मैंने कराया है. देन क्वेश्चन नंबर 33, पीकॉक टेरेंटुला. देखो, अपन ने आर्थ्रोपॉड्स पे जब अपन गए थे और अराक्निड्स में अपन गए थे, वी ओनली स्टडीड अबाउट 2 स्पाइडर्स. वन वाज रामेश्वरम ऑर्नामेंटल एंड अदर वाज गुटी टेरेंटुला. तो पहला स्टेटमेंट, इट इज एन ओमनिवरस क्रुस्टेशियन. क्रुस्टेशियन नहीं है, क्या है? अराक्निड्स है. नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम्फेसाइज्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन. व्हाई मैंने आपको जब आर्थ्रोपॉड्स पढ़ाए, आर्थ्रोपॉड्स में इंसेक्ट अलग पढ़ाए, क्रुस्टेशियन अलग पढ़ाए एंड अराक्निड्स अलग पढ़ाए. हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व. इट्स एन ओमनिवरस क्रुस्टेशियन. वन इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग. अब 2 को देखने की जरूरत नहीं. इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया ओनली. ये दैट इज आल्सो ट्रू, वी हैव स्टडीड दिस. देखो, इट इज एंडेमिक टू साउथ इंडिया, तो इट्स नेचुरल हैबिटेट इज इन इंडिया ओनली, एंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन आर्बोरियल स्पीशीज. देखो, हम बोलेंगे वुडन माउंटेन सिस्टम में मिलता है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ा रखी है. तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली सॉल्वेबल फ्रॉम व्हाट आई हैव टॉट. देन ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 98, ओनली वन स्टेटमेंट इज सॉल्वेबल. जैसे
इन टर्म्स ऑफ CO2 emission from fuel combustion, इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक। देखो यार, एशिया पैसिफिक में रशिया भी आता है, एशिया पैसिफिक में चाइना भी आता है, कई बार जब हम एशिया पैसिफिक को ब्रॉडली मेजर करते हैं तो यूएस भी आता है, एंड देयर एमिशन इज हायर देन दैट ऑफ अस। ये वाला आपने देखा है, यूरोपियन, दिस इज यूरोपियन यूनियंस एमिशन, दिस इज यूएस एमिशन, देन वी हैव चाइना, देन वी हैव रशिया, एंड देन कम्स द एमिशंस ऑफ इंडिया। तो ये वाला सेक्शन अपन ने किया है। अब देखो, दो में से पार्शियली सॉल्वेबल बोल रहा हूं, बट इफ वी कैन मेक टू रॉन्ग, क्या हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया? इफ टू इज रॉन्ग, अच्छा वन भी यहां रॉन्ग है, एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, हियर वन इज आल्सो रॉन्ग, टू इज आल्सो रॉन्ग, आंसर शुड बी 3 ओनली, जो है नहीं। तो आई एम अज्यूमिंग कि इन एशिया पैसिफिक दे आर नॉट इंक्लूडिंग यूएस एंड दे आर कंसीडरिंग रशिया's emission to be less, and because one is for sure wrong, तो आंसर here should be C, and that is why I am calling it partially solvable। अगर भगवान ने साथ दिया तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें दो स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं। ओके, देन लेट मी ब्रिंग, अब देखो कुछ चीजें मैंने ना इकोनॉमी की बेसिक्स के साथ यूट्यूब पे डाली थी, जहां पे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट प्राइमरी डेफिसिट को डिटेल में, फिस्कल डेफिसिट को डिटेल में, दोस क्वेश्चंस हैव कम हियर। देन फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट तो चलो बहुत बेसिक चीजें, हर कोई कर लेता है। लेट्स कम टू क्वेश्चंस, जैसे आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर, तो आरबीआई को पैसा कहां से मिलता है? आरबीआई गेट्स मनी फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड्स। वेयर डज आरबीआई गेट इट्स रेवेन्यू? एंड इट आल्सो गेट्स मैनेजमेंट कमीशन। तो बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। अब ये प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी नोट्स में ये वाला अपन ने यहां पढ़ा है, इशू ऑफ करेंसी जो आरबीआई करता है, इट डजंट हैव टू बैक इट बाय सम रिसोर्स, तो इट्स नॉट एक्सपेंसिव फॉर इट, प्रिंटिंग इज चीपर एंड द वैल्यू दैट इट गेट्स आउट ऑफ इट इज हायर। तो दिस क्वेश्चन is also kind of completely doable. Then let's come to, हाँ ये वाला पार्ट एग्रीकल्चर इनकम वाला। देखो, in our economy booklet 3 page number 31 we have defined agriculture income is defined as this: rent or revenue from land situated in India and is used for agriculture purpose, processing of any income derived from such land by agriculture operation, any income attributed to farmhouses subject to satisfaction। अब यहाँ पे कहीं भी ना, we have not said poultry farming, wool rearing etc are included in the definition of agriculture, and thus are exempted, agriculture income and thus are exempted from the tax। In India rural agriculture land is not considered a capital asset, ये भी हमने किया है। देखो, जब हम कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहे थे, we were saying taxes on capital value of asset exclusive of agricultural land। ये दोनों पार्ट अपन ने क्लास में किया है। दिस इज इकोनॉमी 3 पेज 48, दिस इज इकोनॉमी 3 पेज 31। देन वी हैव व्हाट, वी हैव कैपिटल मार्केट। ये क्वेश्चन था बॉन्ड और स्टॉक्स के बीच में कंपैरिजन का, और इन द कैपिटल मार्केट पेज 1 and 2 पे वी हैव टॉक्ड अबाउट शेयर्स एंड बॉन्ड्स। तो शेयर्स आर फ्रैक्शंस ऑफ कंपनीज कैपिटल, बॉन्ड्स आर डेट। performance of share is highly dependent on market fluctuation, bonds are safer investment option, bonds are safer। shareholders, जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर फ्रैक्शनल ओनर ऑफ द कंपनी, बॉन्ड होल्डर्स आर जस्ट लेंडर्स। यही सब पूछा है ना। बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क, ये भी आपने देखा होगा। यहां पे बॉन्ड होल्डर्स बिकॉज दे आर लेंडर्स दे आर एट लोअर रिस्क, वेयरएज ओनर्स हैव हायर रिस्क। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी, ये भी अपन ने किया है। बॉन्ड होल्डर्स आर व्हाट, लेंडर्स। यहां पे होगा कहीं पे, हाँ, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू द कंपनी। देखिए, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर टू अ कंपनी, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स है ना। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर। देखो, लेंडर्स आर प्रायोरिटाइज बाय स्टॉक होल्डर्स, ये भी मैंने आपको कराया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में मैंने आपको एक प्रायोरिटी चार्ट दिया था, उसमें अगर आपको रीपेमेंट करना है तो पहले लेंडर्स को करोगे, ओनर्स विल गेट द मनी एट द एंड। तो दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली सॉल्वेबल। देन लेट मी ब्रिंग यू टू this topic. Consider the following statement: India accounts for a very large portion of all equity option. India's stock market has grown rapidly in the recent past. There is no regulatory body either to warn the small investor about the risk of option trading or to act as unregistered। तो देखो, पहले अपन ने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि option trade, ये derivative, if you will come here, we have talked about what is option trading and all, and we have talked about it in the capital market, and then we have also discussed कि SEBI is the regulator of capital market and it also works for the interest of investor, and that is why this statement, what statement, third statement is rubbish।
थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड द मोमेंट थर्ड स्टेटमेंट आप रॉन्ग कर लो, क्या हो जाएगा? योर आंसर विल बी 1 and 2. दो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटली सॉल्वेबल. वेयर हैव वी डन इट? इकोनॉमी बुकलेट 8 कैपिटल मार्केट पेज नंबर 8 पे दिस हैज बीन डन, एंड इकोनॉमी बुकलेट 8 पे ही कैपिटल मार्केट में पेज नंबर 2 पे वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आल्सो. देन क्वेश्चन नंबर 60, ये तो यार सब कराते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है. कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, ये इसको अब बोस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं. ओके, तो देखो, देर आर हाउ मेनी क्वेश्चंस? देर आर 41 क्वेश्चंस which we are saying have directly come from our notes. Let me bring you here at the top. This is the list. I will upload this PDF in the description of this video also, and please note, यहां पे ना मैंने जो इनडायरेक्टली सॉल्व होंगे वो क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए. मैंने ड्रोन्स वाला, ऑल ड्रोन्स आर दिस, ऑल ड्रोन्स आर दिस, ऑल ड्रोन, वो तीनों गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है. ऐसे नो वायरस कैन डू दिस, नो वायरस कैन डू दिस, नो वायरस कैन डू दिस, दोस आर आल्सो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स. वी हैव इनडायरेक्टली कवर्ड देम इन क्लासेस. जैसे मैंने जब क्रिस्पर पढ़ाया, आई एक्सप्लेन्ड यू व्हाट, कि क्रिस्पर का ओरिजिन कम्स फ्रॉम द मैकेनिज्म व्हिच बैक्टीरिया यूज टू फाइट अगेंस्ट वायरसेस. जब वायरस उन्हें इन्फेक्ट करते हैं तो मैकेनिज्म बैक्टीरिया यूज, तो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये सब तो पढ़ा हुआ है ना यार. बट I am not claiming all those things. COP28 मैंने पढ़ाया है, COP29 भी पढ़ाया है, COP28 भी, but I am not claiming it because वो जो COP28 मैंने पढ़ाया है उससे वो क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट? तो unlike others I have not gone into बस रेफरेंशियल थिंग. ऐसे तो हमने RTFQ कराए हैं, RTFQ से सब पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा. इट डजंट मीन दैट मेरी क्लासेस जनवरी 2025 के बाद से सिर्फ मैंने जो पढ़ाया है करंट अफेयर्स प्रोग्राम में, यूट्यूब सीरीज में, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं. उसमें 40+ क्वेश्चंस डुएबल है. अगर आप स्टूडेंट थे PMP प्रोग्राम के, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये भी पढ़ाया गया है, यू विल सी that around 70-80 questions would be doable from your class notes only. एक पेपर जहां कट ऑफ will be between 80 to 90 marks. Just doing your classes, revising them, practicing questions was enough. Why did I make this video? Because I want students to understand कि यार बहुत सारी चीजों के पीछे नहीं भागना है. जो पढ़ा है ना उससे अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो. क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मेरी जिम्मेदारी है. 2026 के लिए भी हमारा करंट अफेयर्स प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है 14 जून से. एक 15 मंथ का प्रोग्राम रहेगा, सारे एस्पेक्ट्स हम अच्छे से कवर करेंगे. ऐसे ही लास्ट ईयर जो हमने मेंस में पढ़ाया था उससे बहुत सारा ओवरलैप था. मैं लास्ट ईयर वीडियो बना नहीं पाया, बट दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बी मेकिंग दिस वीडियोस टेलिंग स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स कि यार कितना ओवरलैप है, राइट? तो थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको कोई भी डाउट हो, कंसर्न हो, आप कमेंट में लिखो. आपको कोई वीडियो चाहिए, स्निपेट चाहिए कि सर क्लास का स्निपेट डालो, आप कमेंट में लिखो, मैं प्रोवाइड करूंगा. फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट वी हैव क्लेम्ड हियर. ये ना सिर्फ नोट से नहीं आया, प्लीज. आई हैव कवर्ड each and every word in classes. We have discussed it, we have played on it, we have laughed on it, we have analyzed all these things. And तब मैं बोल रहा हूं, and again I'm not claiming things which are indirectly solvable. आपको बहुत ज्ञान मिला है, उससे भी आप बहुत सारी चीजें और कर पाए होगे. Things which are specifically in your notes. Okay, so this was it from my side. Thank you very much. I hope you get more confidence when you are following our current affairs classes based on this video. Thank you.